again, we are back on Ekbun Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of an episodes on Tea Talk Ekbun Sochki. In fact, in each and every episode, we try and bring the prominent personalities from the industry, or maybe in terms of a leadership, entrepreneurship, young achievers into sports, into as far as the advertisement world is concerned, and various walks of an life. Now, when we talk in terms of sports and youth life, the population of India majorly comprises of an youth. Therefore, it's necessary not only to address the problem faced by the youth, but also to provide them an opportunity to grow life. The government constant again engagement with the athletes right from the grassroots level. Khelo India to highlight the athlete in top is a huge change what we have witnessed. The vision of Prime Minister Narendra Modi ji and the mission mode with his government is working to promote these sports and sports person reflects his unique scheme and the program. The result what we have seen in the recent concluded Brigham 2020-22 Commonwealth, where we have seen India total tally of 61 medals what they have won. From that, the gold they had 22, silver 16, bronze 23, and in fact test them young. Khelo India, there are various schemes promoted by Government of India, and I'm sure if you catch the youth from young, the transformation takes place. Today on this platform, we are having Ritika Naman. Welcome to Tea Talk Ekbun Sochki. Thank you so much for giving me an opportunity. Good. Both Ritika and Naman, they are brother and sister, and recently they have won 12th Acrobatic Gymnastics Asian Championship on 23rd of September, which was held in Kazakhstan. And in fact, we would like to know the story of theirs, like how they have struggled at the initial stage. And I think Ritika, she got gold, and Naman, he got bronze. Like, congratulations! I think you have brought in glory to India. Now, Ritika, आप ये बताइए, like आपने किस उम्र से ये मतलब एक्रोबेटिक खेलना शुरू किया? मैं 9th स्टैंडर्ड की थी तभी मैंने एक्रोबैटिक्स शुरू किया. मेरी मॉम ने एक्रोबैटिक्स में मुझे डाला, जिम्नास्टिक्स में उन्हें डाला. उनको बहुत ऐसा था कि मेरी लड़की भी कुछ करे लाइफ में, इसके लिए उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक्स में डाला. ओके, तो इनिशियली जब भी आप पहली बार एक्रोबेटिक्स के लिए गए थे, तो आपने क्या प्रयास किया? लाइक मैंने बहुत मेहनत करी है मैंने. मेरी मम्मी पापा भी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने बहुत एशियन चैम्पियनशिप, गोल्ड मेडल्स बहुत सारे जीत लिए थे. और मैंने जब भी मैं 10 साल की थी तभी मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी. In fact, Ritika, when she was 10 years old, I think first she won the Federation National Championship, where she came third, then she got 2 bronze, and from 6th, 7th, 8th and 10th standard, she had won around about 9 gold, like, and also like regularly I think she had been part of an medal, but now winning the gold at the 12th Acrobatic Gymnast. Let's know further from her. Like Ritika, like आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी मम्मी सिलाई मशीन चलाती है. Okay. सिलाई मशीन चलाती है. वो दोनों ने मेरे पीछे बहुत मेहनत करी है. Okay. मेरे पापा सुबह सुबह मुझे 5 बजे लेकर जाते थे कांदीवली. तो यहाँ से आप चेंबूर से कांदीवली जाते थे हम. ये बहुत दूर है कांदीवली चेंबूर से. तो हम वहाँ मेरे को प्रैक्टिस के लिए लेके जाते थे एक सर के पास. पूरा 1 मंथ वो वहाँ पे मुझे लेके गए ट्रेनिंग के लिए. वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग ली है. और नारायण राव स्कूल में मैंने ट्रेनिंग ली है. मेरे को 14 साल हो गए नारायण राव स्कूल में ट्रेनिंग लेते हुए. ओके, सो इनफैक्ट आपको किस तरह सा सपोर्ट मिला? लाइक हर एक जब से आपने आई थिंक 10 साल की थी जब से आपने एक्रोबैट की स्पोर्ट्स में आपने इंटरेस्ट दिखाया, तो स्कूल में जो पढ़ाई का चैलेंजेस और फिर लाइक जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज किया आपने? मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया. पढ़ाई भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज की. मैं सुबह उठती थी, 5 बजे उठती थी. फिर मैं जिम्नास्टिक्स जाती थी. सुबह 6 बजे की प्रैक्टिस रहती थी हमारी. फिर वहाँ से मैं मेरे स्कूल जाती थी. फिर स्कूल से मैं 2 बजे आती थी.
मेरे क्लासेस जाती थी, क्लासेस से मैं जिम्नास्टिक जाती थी, जिम्नास्टिक से मैं 9:30-10 बजे छूटती थी, फिर मैं घर जाती थी, अपना सारा होमवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी, फिर मैं सोती थी एंड देन अगेन रिपीट, वही मेरा शेड्यूल होता था। तो आपको लाइक स्कूल में जैसे आपको आपने हर एक साल में आपने कुछ ना कुछ मेडल या सब जीते हैं, तो आपको प्रेरणा किससे मिली? लाइक कोई टीचर्स ने आपको कोई सपोर्ट किया या कुछ स्कूल ने आपको सपोर्ट किया इंटायर एंड्योर में? मेरे स्कूल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कॉलेज ने भी मुझे सपोर्ट किया, बट स्कूल टाइम में मेरी एक टीचर थी कुलजीत कौर, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मतलब बहुत, मेरी फैमिली को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जब मैं जीत के आती थी तभी भी वो मुझे उतना ही अप्रिशिएट किया है जिन्होंने, जितना मुझे आज मैंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाया, जितना मुझे आज उन्होंने अप्रिशिएट किया। हर एक छोटी से छोटी खुशी में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इवन पढ़ाई में भी उन्होंने मेरे ट्यूशन्स लिए, 10th स्टैंडर्ड में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ओके, गुड। रितिका, लाइक आप स्पोर्ट्स में कितना समय अपना ट्रेनिंग में स्पेंड करते हो, पढ़ाई में कितना आप स्पेंड करते हो? मैं स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा ही समय स्पेंड करती हूँ, पढ़ाई में बहुत कम, बहुत कम स्पेंड करती हूँ। स्पोर्ट्स में मैं 6 to 7 आवर्स दिन के मैं उसमें स्पेंड करती हूँ और पढ़ाई में मैं 2 to 3 आवर्स। और उसके बावजूद भी आपने लाइक 10 साल की उम्र से आप एक्रोबैट्स करते आ रहे हो, उसके बावजूद आपने 10th स्टैंडर्ड में 86% आपको मिले, तो आपने कैसा अचीव किया 86%? रेगुलर स्टडीज से, बस रेगुलर थोड़ा थोड़ा रिवीजन, रेगुलर स्टडीज से आई अचीव इट। ग्रेट। अभी आपका आगे क्या ख्वाब है, आप क्या करना चाहते हो? मुझे आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाना है। जैसे मैंने अभी एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड लाया, वैसे मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मुझे पार्टिसिपेट करना है और मेरा बेस्ट देना है और इंडिया के लिए मुझे फिर से गोल्ड लाना है, ये मेरा सपना है। और नमन, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? फिर आप भी जो आपकी सिस्टर ने किया उसी प्रोफेशन में एक्रोबैट में आप भी चले गए? हाँ, दीदी करती थी एक्रोबैटिक्स, इसके लिए मुझे मतलब देख देख के जब मैं बहुत छोटा था दीदी मतलब करती थी, मैं साइड में बैठ के देखते रहता था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी करना चाहिए ये, इसीलिए तो मैं भी ज्वाइन हुआ एक्रोबैटिक्स और अभी ब्रॉन्ज एशियन चैम्पियनशिप में। तो कैसा लगता है ब्रॉन्ज मिलने के बाद में? अच्छा। रितिका, जब भी आपको ये गोल्ड मिला तो आपके ग्रुप की क्या फीलिंग्स थी? आप जब भी उस नेशनल एंथम चल रहा था और फ्लैग आपके हाथ में था, क्या मतलब आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में मैं तो बस रो रही थी कि मैं इतनी खुशी थी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मेरे कोचेस राहुल ससाने, योगेश पवार सर, सुनील रणपीसे सर एंड रमेश सकड़ सर, ये चारों की बहुत बहुत मेहनत है मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत है। इन्होंने रात दिन एक कर दिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। ये जितना टाइम अपनी फैमिली को स्पेंड नहीं करते उतना टाइम हमारे पीछे करते हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे सर्स का। ये जब मैं खड़ी थी विक्ट्री स्टैंड पे और जब भी नेशनल एंथम बजा, मैं तो रो ही रही थी, मेरे साथ साथ वो लोग भी रो रहे थे। ये बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। पूरे देश के लोगों के सामने हमारा नेशनल एंथम बजना, ये बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। I think we sincerely appreciate the efforts taken by Prime Minister Narendra Modi ji to encourage the sports at the grassroots level, Khelo India, and I'm sure like Ritika or Naman jaise at the very young age where they have started acrobatic and now they are dreaming to have a gold medal for India. I'm sure like they are committed, they are very firm, and if they get the support at this level, and I'm sure like they can compete in a much healthy way, like she being part of an particular economic strata. But I think in fact Ritika और नमन के पिताजी रिक्शा चलाते हैं और मम्मी सिलाई करती है, एंड दे ट्राई एंड मैनेज द हाउस। और उसके बावजूद भी पढ़ाई में भी रितिका 86% 12th में लेके आई है। अभी नाउ शी इज़ इन फाइनल ईयर और नमन अभी 10th में है।
and I'm sure like the kind of a commitment and the passion which is there towards the sports acrobatic, and they've got a dream to bring glory for India and get a gold like. रितिका, आई विश यू ऑल द बेस्ट. नमन, आई विश थैंक यू यू ऑल द सो बेस्ट. मच. थैंक यू और आप वैसे ही आप मेहनत करते रहिएगा और हमारे देश के लिए और काफ़ी ढेर सारे आप गोल्ड लेके आइएगा. And we also going to get some glimpses about her medals right from school till now. There's a lot of medals what she had won, and we're looking forward to see that Ritika she wins the gold medal, and also her younger brother Naman also. I wish you all the best. God bless you. Keep on working hard. Thank you so very much. much. Thank you so much. I hope if you like the achievements of Ritika and Naman, just go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Till then, watch out for our next experts on TikTok. Thank you very much. Thanks.